My lovely students, welcome to Mythological. With this session, we are starting special sessions for ZAT, Quantitative Aptitude and Data Interpretation for ZAT 2025. And I've already covered the previous year questions in most cases in previous videos. You can check out those videos from the playlist. And in this session, we'll be doing some previous year questions जो कि इन्हीं sessions के लिए रखे थे, और additionally some replica questions will be there and some other important questions that will be relevant for the examination. Start करते हैं, and what you will be doing for each question, pause the video, try to solve it yourself, take your time because that में time ज़्यादा मिलेगा, so take your time. ठीक है, you can take 4 to 5 minutes in a question, no problem if a question is tricky and difficult, and then watch the solution. So the first question is from ZAT 2008. In second year, students at a business school can opt for systems, operations or HR electives only. The number of girls opting for operations and number of boys opting for systems electives is 37. 22 students opt for operations electives. 20 girls opt for systems and operations electives. The number of students opting for systems electives and number of boys opting for operations electives is 37. And 25 students opt for HR electives. So the question is, number of students in the second year क्या होगा? Okay. So total 3 options are there. Students at the business school are opting for systems, operations or HR. And girls and boys. Number of girls opting for operations and number of boys opting for systems total is 37. Number of girls opting for operations and a number of boys opting for systems total is 37. Let us assume the number of girls opting for operations that is equal to A and number of boys opting for systems that is equal to B. So A plus B is given as 37. 22 students opt for operations electives. Total operations elective को opt करने वाले students हैं 22. 20 girls opt for systems and operations electives. 20 girls opt for systems and operations electives. So अगर total 20 है for systems and operations electives for girls, A हमने assume किया operations के लिए girls को, तो 20 माइनस से हो जाएगा नंबर हमारा for systems. Okay. Number of students opting for systems electives and number of boys opting for operations elective is 37. Number of students opting for systems elective यानी कि 20 minus A plus B, that is number of students opting for systems elective, plus number of boys opting for operations elective, boys opting for operations elective which is equal to 22 minus A, क्योंकि total हमारा 22 है. A are number of girls in operations, so 22 minus A will be number of boys, so plus 22 minus A, this will be equal to 37. और यहाँ से मैं और भी में second equation मिल जाएगा. So this will mean 42 minus 2A plus B is equal to 37, and hence 2A minus B will be equal to 5. Add the two equations, 3A will be equal to 42. So A will come out to be equal to 14 and B will be equal to 23. A 14 and B will be 23. 14, 22 minus A हो जाएगा 8, B will be 23, and 20 minus 20 minus 14 will be equal to 6. Last information was 25 students opt for HR electives, so total is 25. क्या ये clear है? So the question was number of students in the second year क्या होगा? Number of students in the second year. So 22 are in operations, 25 are in HR और systems में हो जाएंगे 23 plus 6 29. So 29 plus 22 plus 25. 51 plus 25, answer will be 76, option C. 76 will be the answer. Clear है? Okay. ठीक है. Next question. If 20% of the girls opt for HR electives, then total number of boys in the second year क्या होगा? 20% of the girls opt for HR electives, then what will be total number of boys in the second year? So 20% of total girls opt for
HR elective. So 80% of girls opt for systems or ops. बिकॉज HR इलेक्टिव में कितना गर्ल्स होगा ये तो हमें पता नहीं है, ये तो निकालना पड़ेगा, बट 80% ऑफ द गर्ल्स ऑप्ट फॉर सिस्टम्स एंड ऑपरेशंस, और वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. तो सिस्टम्स में देयर आर 6 गर्ल्स, ऑपरेशंस में 14, 20 girls are in total which have opted for systems or operations. So 80% is equal to 20. And if 80% is equal to 20, 20% will be 1/4 which will be equal to 5. 100% हो जाएगा 25, but 100% निकालने के लिए 20% 1/4 होगा, 1/4 will be equal to 5, यानी कि 5 girls will be opting for HR elective. So fill कर दो 5 girls and hence 20 boys will be there because total is 25. And second question was कि total number of boys in the second year क्या है? Total number of boys in the second year. तो boys second year में आ रहा है हमारे 23 plus 8 plus 20. So answer will be 51. Number of boys in the second year will be 51. Option C will be the answer. Isn't it so? Is that clear? ठीक है. Next question. Next question. An antique store has a collection of 8 clocks. At a particular moment, the displayed times on 7 of the 8 clocks are as follows: 12:25 p.m., 12:37 p.m., 12:50 p.m., 1:15 p.m., 2 p.m., 3:15 p.m., and 5:12 p.m. If the displayed time of all 8 clocks from mathematical series form a mathematical series, then what was the displayed time on the remaining clock? तो 7 clocks का टाइम दिया है, एक क्लॉक का टाइम मेंशन नहीं है, एंड वी हैव नो आइडिया कि वो क्लॉक व्हाट विल बी दैट टाइम. ठीक है, वो 12:25 से पहले होगा, 5:12 के बाद में होगा, या बीच में कहीं पे होगा. तो समहाउ हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. पैटर्न ऑफ द टाइम्स. पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट. 12:25, 12:37, 12:50, 1:15, 2, 3:15 and 5:12. So difference देखते हैं between the times. 12:25 to 12:37 तक there is a gap of 12 minutes. From 12:37 to 12:50 there is a gap of 13 minutes. From 12:50 to 1:15 10 plus 15 25 minutes का gap है. From 1:15 to 2 45 minutes का gap है. From 2 to 3:15 75 minutes का gap है. और from 3:15 to 5:12 2 hours minus 3 यानी 117 minutes का gap है. 12, 13, 25, 45, 75 एंड 107. इसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सीरीज बनेगा यहाँ पे. ओके, isn't it so? सो क्या पैटर्न आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? 12, 13, 25, 45, 75 एंड 117. नो क्लियरली मल्टीप्लीकेशन का सीरीज तो नहीं लग रहा कि सीरीज में नेक्स्ट टर्म हम मल्टीप्लाई करके आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्योंकि जो इंक्रीजेज हैं दे आर कंसिस्टेंट और चांसेस आर कि एडिशन कर रहे हैं हम. 1 सेकेंड. सो 12 से 13 के बीच देयर इज अ गैप ऑफ 1. फ्रॉम 13 to 25 गैप इज ऑफ 12. फ्रॉम 25 to 45 गैप कितना है? 20 का है. देन 45 से 75 द गैप इज ऑफ 30 एंड देन 42. 12, 20, 30, 42. थोड़ी देर के लिए 1 को इग्नोर कर दो बिकॉज 1 से तो पैटर्न क्लियरली नहीं दिख रहा है. 12, 20, 30 और 42 से देख पा रहे हो. 12 इज बेसिकली 3 into 4, 20 is 4 into 5, 30 is 5 into 6 and 42 is 6 into 7. So there is a clear pattern. और इससे पहले वाले नंबर 1 पे क्यों नहीं दिख रहा पैटर्न? बिकॉज समहाउ शायद वहां पे कोई एक वॉच का टाइम रहा होगा और उसी के लिए आंसर पूछ रहा है. दैट इज वाई वहां पे पैटर्न नहीं मिल रहा है हमको. बट क्या ये पैटर्न समझ में आ रहा है? अगर फिर भी ये पैटर्न देखने में दिक्कत आ रहा हो तो फिर तुम एक बार और फिर से देख लो. गैप 12 और 20 के बीच में गैप है 8 का. 20 और 30 के बीच में गैप है 10 का. 30 और 42 के बीच में गैप है 12 का. तो इससे पहले गैप होगा 6 का, उससे पहले गैप होगा 4 का. इजंट इट सो? क्या क्लियर है? ठीक है. सो 3 into 4 आ रहा है, तो इससे पहले वैल्यू क्या रहा होगा? यहाँ पे ये 1 दिख रहा है हमें. 1 इसलिए दिख रहा है बिकॉज समहाउ दिस माइट नॉट हैव बीन 12. यहाँ पे बीच में कोई एक क्लॉक रहा होगा शायद. सो 3 into 4 से पहले नंबर रहा होगा 2 into 3 यानी कि +6 हुआ होगा. ठीक है, +6 हुआ होगा.
तो करेक्ट करते हैं इसको। सो +12 हुआ था, इससे पहले +6 हुआ होगा, सो देयर मस्ट बी ए नंबर +7, लेट अस से, बिकॉज 7 + 6 इज 13। और उससे पहले क्या रहा होगा, 1 × 2, सो +2 हुआ होगा, और 5 + 2 = 7, तो +5 हुआ होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो 1225 + 5 विल बी 1230, एंड 1230 + 7 विल बी 1237। 5 + 7 केम आउट टू 12, जो कि हमारा वैल्यू आ रहा था पहले। तो 1230 शुड हैव बीन द टाइम ऑन द रिमेनिंग क्लॉक। टाइम ऑन द रिमेनिंग क्लॉक, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, और अगर नेक्स्ट टाइम पूछता कि 5-12 के बाद वाली क्लॉक पे टाइम क्या होना चाहिए था, अगर सीरीज यही कंटिन्यू करेगा, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा, दैट विल बी 117 + 7 × 8 विच विल बी 56, यानी कि +171, जो कि 3 आवर्स से 9 मिनट्स कम है। तो 8 × 12 - 9, तो 8:03 PM, दिस शुड बी द टाइम ऑन द नेक्स्ट क्लॉक इफ देयर वाज एनी अदर क्लॉक। ठीक है, बट क्लॉक तो हमारी 8 ही है, अदरवाइज सीरीज को आगे कंटिन्यू करना होता तो वो आंसर हो जाता, बट बीच की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करना था और बीच में एक वैल्यू मिसिंग था, तो दैट वैल्यू विल बी 12:30 PM। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। A box contains 25 blue balls and 20 red balls. Total balls are 25 blue and 20 red. An unbiased die is rolled. If the result is an even number, then 3 blue balls and 1 red ball is taken out without replacement. And if the result is an odd number, then 2 red balls and 1 blue balls are taken out from the box without replacement. If the die is rolled 4 times in total, then what is the probability that total number of blue balls which are taken out is more than total number of red balls that are taken out? ठीक है, if outcome is even, then 3 blue balls and 1 red ball is taken out. If outcome is odd, then 2 red ball and 1 blue ball is taken out. And since a dice has total 6 outcomes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and out of these 6, 3 are even, 3 are odd, तो even आने की probability क्या होगी? Probability of even is same as probability of odd, and that is equal to 1/2. 50% चांस है even आएगा आउटकम, 50% चांस है कि odd आएगा आउटकम, isn't it so? और क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि टोटल 4 टाइम्स हम डाइस को रोल करा रहे हैं, and after rolling the dice 4 times, what is the probability that total number of blue balls are greater than total number of red balls? अब अगर हम 4 टाइम्स डाइस को रोल कराएंगे, तो आउट ऑफ दोज 4 आउटकम्स क्या क्या केसेस बन सकते हैं? या तो ऑल 4 विल बी इवन, ठीक है, या 3 विल बी इवन, 1 विल बी ऑड, या 2 इवन, 2 ऑड, या 1 इवन, 3 ऑड, या फिर 0 इवन एंड 4 ऑड। तो ये 5 केसेस बनेंगे हमारे। बस हमें ये देखना है इन 5 केसेस में से कितने केसेस में हमारी नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ रेड बॉल्स, और फिर हर एक केस की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। क्या ये क्लियर है? ओके, ठीक है। सो डेफिनेटली जब हम एक आउटकम हमारा इवन आता है, तो इन इवन आउटकम नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज ग्रेटर देन रेड बॉल। तो जितने इवन आउटकम आएंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ रेड बॉल्स, व्हाइल इन अ ऑड आउटकम रेड बॉल्स आर ग्रेटर देन ब्लू बॉल्स, isn't it so? So if number of even outcomes are greater than number of odd outcomes, तब तो फॉर श्योर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स विल बी मोर देन नंबर ऑफ रेड बॉल्स। ठीक है, यानी कि फर्स्ट केस में डेफिनेटली सेटिस्फाई करना चाहिए, सेकंड भी सेटिस्फाई करना चाहिए, थर्ड भी सेटिस्फाई करना चाहिए। 2 इवन एंड 2 ऑड, तो वहां पे भी नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हमारी ज्यादा रहेंगे। ठीक है, चेक करना है हमें फोर्थ वाले में कि वो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जब 4 इवन आएगा तब तो फॉर श्योर पक्की बात है। 4 इवन इंप्लाइज कि 12 ब्लू and 4 red, so definitely blue balls are greater than red balls. If there are 3 even and 1 odd, so even से हमें मिलेगी 9 blue balls और एक odd से मिलेगा 1, तो total 10 blue balls will be there. And red balls कितना होगा? even में मिलेंगी 3 और odd में मिलेगी 2, तो 5 red, तो definitely still blue balls are greater. चेक करने की ऐसे जरूरत ही नहीं था क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है इवन पे जब नंबर ऑफ इवन बॉल्स ज्यादा, नंबर ऑफ इवन आउटकम ज्यादा होगा तो डेफिनेटली ये केस सेटिस्फाई करेगा।
बट बस तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। सो थर्ड केस में देख लेते हैं 2 इवन 2 ऑड, वहां पे भी नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स विल बी ग्रेटर बिकॉज 2 इवन 2 ऑड में नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हो जाएगा हमारे पास 6 + 2 8 ब्लू बॉल्स एंड 2 + 4 6 रेड बॉल्स, तो डेफिनेटली ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट केस 1 इवन 2 ऑड, 1 इवन 3 ऑड, so if there is 1 even 3 blue 3 odd 3 + 3 6 blue balls are there and 3 odd पे 1 even 3 odd पे 1 red and 6 red यानी कि 7 red balls हैं, तो डेफिनेटली 6 blue balls are less than 7 red balls, तो ये वाला केस काम नहीं करेगा। तो पहले 3 केसेस की प्रोबेबिलिटी है हमारी काम के 4 even 3 even 1 odd 2 even 2 odd, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इवन क्या होगा, 4 इवन का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2 to the power 4, ठीक है। ऑल 4 इवन, भाई 3 केसेस बने हमारे, 4 इवन 3 इवन 1 ऑड जो फेवरेबल केसेस हैं, और थर्ड केस फिर 2 इवन एंड 2 ऑड। सो इफ ऑल 4 आर इवन, इवन की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/2 थी, ऑड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इफ ऑल 4 आर इवन, प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2 to the power 4। इफ 3 आर इवन एंड 1 इज ऑड, ठीक है, तो इवन की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 और 3 इवन है 1/2 क्यूब, ऑड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है 1/2 to the power 1, ठीक है। बट कौन सा 1 ऑड होगा टोटल, क्योंकि 3 इवन 1 ऑड है, तो ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट 3 आर इवन, फोर्थ इज ऑड, या फर्स्ट 2 आर इवन देन ऑड देन इवन, या फर्स्ट इवन देन ऑड देन 2 इवन, या फर्स्ट ऑड एंड देन 3 आर इवन। तो टोटल 4 वेज हैं जिससे कि ऑड आ सकता है। पहला आउटकम ऑड हो, सेकंड आउटकम ऑड हो, थर्ड आउटकम ऑड हो, या फिर फोर्थ आउटकम ऑड हो। तो 4C1, तो 4 इंटू दिस, ठीक है, पहला केस है। दूसरा केस और यानी एडिशन, और लास्ट वाले केस में 2 इवन 2 ऑड 1/2 to the power square बिकॉज ऑफ इवन 1/2 to the power 2 फॉर ऑड। एंड अगेन 4 में से 2 हमें सेलेक्ट करने हैं फॉर इवन, ठीक है, तो 4C2 नंबर ऑफ वेज आ जाएगा। यहां भी दिस वाज 4C1, सो वैल्यू आ गया हमारा 1/2 to the power 4 प्लस 4 इंटू 1/2 to the power 4 प्लस 4C2 is 6, 6 इंटू 1/2 to the power 4, यानी कि 6 + 4 + 1 11/16 विल बी द आंसर। आंसर आ जाएगा 11/16। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the sum of all the natural numbers from 1 to 100 that are neither a multiple of 2 nor a multiple of 5. Sum of all the natural numbers from 1 to 100 that are neither a multiple of 2 nor a multiple of 5. ना तो 2 के मल्टीपल है ना तो 5 के मल्टीपल है। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछता कि ऐसे नंबर्स कितने होंगे तो हम टोशन मेथड, यूलर्स टोशन फंक्शन से निकाल पाते, ठीक है, बिकॉज 100 तक के नंबर्स चाहिए हमें विच आर नीदर मल्टीपल ऑफ 2 नॉर मल्टीपल ऑफ 5, बिकॉज 100 हमारा 2 और 5 का ही मल्टीपल है। 100 इज बेसिकली 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। इज 100 सो, ठीक है। तो कितने ऐसे नंबर्स मिलेंगे, टोशन ऑफ 100 दिस विल बी 100 इंटू 1 - 1/2 into 1 - 1/5, तो 1/2 into 4/5 यानी 4/10, तो 40 such numbers will be there which will be co-prime with 100 या फिर neither a multiple of 2 nor a multiple of 5, तो co-prime with 100, 40 such numbers will be there। बट हमें यहाँ पे सम आइडेंटिफाई करना है, सम कितना होगा, सम ऑफ ऑल सच नेचुरल नंबर्स, ओके। तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें सारे नंबर्स का सम निकालना हो तो कितना आएगा, सम ऑफ ऑल दोज नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 n into n + 1/2, first 100 consecutive numbers, so that will be 100 into 101/2, so 15 to 101 5050 will be sum of all those 100 numbers, okay। now we have to subtract those numbers which are a multiple of 2 or a multiple of 5, तो 2 के मल्टीपल कितने निकलेंगे हमें, 2 is the first number, 2 4 6 8 10 till 100, till 100 2 को कॉमन ले लिया तो बच जाएगा फ्रॉम 1 to 50, 1 + 2 + 3 till 50, 1 से 50 तक का सम आ जाएगा 15 51/2, सो 151 5050/2, सॉरी 151 5100/2, तो दैट विल बी 2550, सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ठीक है, डिविजिबल बाय 2। नाउ फाइंड आउट नंबर्स का सम विच आर डिविजिबल बाय 5, so those will be 5 10 15 20 25 and so on and so on, so कितना सम आ जाएगा टिल 100,
तो दिस विल बी 5 कॉमन ले लिया, 1 + 2 till 20. ओके, 1 से लेकर 20 तक है सम, सो दैट विल बी 5 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे हमारे 20 है, तो 5 इंटू 20 into 21/2. So 5 into 10 into 21. So that will be 1050. But there are some numbers which will be in this series as well as in this series. For example 10. ठीक है, so any number that is a multiple of 10 as well as 2, 2 as well as 5, 2 और 5 दोनों का मल्टीपल है, यानी कि 10 का मल्टीपल होगा तो दोनों सीरीज में आएगा, और उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसकी डबल काउंटिंग कर ली हमने, तो डिविजल बाय 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे। देखो इस स्पेशल केस में कैलकुलेशन और भी आसान है, अभी हम सेकंड मेथड में देखेंगे तो वहां पे चीजों को और आसानी से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बट अगर 2 और 5 की बजाय 3 और 7 होते, 3 और 5 होते, 3 और 9 होते, नंबर 3 और 9 तो नहीं, 3 और 17 होते या कोई और नंबर्स होते, तो हमेशा हमें यही अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए इस कन्वेंशनल अप्रोच को पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5, यानी डिविजिबल बाय 10, कितने नंबर्स आएंगे हमारे 10, 20 till 100। अगेन 10 को कॉमन ले लोगे, 1 + 2 till 10, so that will be 10 into 11/2 and into 1/2। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारा 100 into 11 100/2 550। नाउ ऐड दीज टू एंड सब्ट्रैक्ट दिस वन 550, तो कितना नंबर बनेगा हमारा 2550 + 1050, दैट विल बी 3600 - 550। ठीक है, दिस विल बी 3600 - 550, तो दिस विल बी 3050। 5050 was total sum and 3050 is sum of those numbers which are divisible by 2 or 5. Subtract कर दोगे 5050 minus 3050 will be our answer. So our answer will be 2000. Answer will be 2000. Option A will be the answer. Isn't it so? Clear है? ठीक है, बट इस क्वेश्चन में हम और इजीली कैलकुलेट कर सकते थे नंबर्स को। कैसे कैलकुलेट करते? देखो हमें सबसे पहले तो एक्सक्लूड करने हैं दोज नंबर्स विच आर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, विच आर ए मल्टीपल ऑफ 2, उनको एक्सक्लूड करना है, और फिर उनको एक्सक्लूड करना है विच आर ए मल्टीपल ऑफ 5। तो 2 के मल्टीपल्स को एक्सक्लूड करते हैं बिकॉज ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर इवन नंबर्स। ठीक है, तो इवन नंबर्स को सबको रिमूव कर दो, बचेंगे सिर्फ ऑड नंबर्स। सो ऑड नंबर्स विल बी 1 + 3 + 5 + 7 till 99। 99 टोटल 50 ऑड नंबर्स आर देयर, और ऑड नंबर्स का सम क्या आता है? सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स इज सम ऑफ n consecutive odd numbers is n square। तो सम आ जाएगा 50 consecutive odd numbers, 50 square will be sum which will be 2500। now we have to remove multiples of 5 as well। तो 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे? और सारे के सारे इवन मल्टीपल्स ऑफ 5 तो रिमूव हो गए हैं क्योंकि सारे इवन नंबर्स को हमने रिमूव कर दिया है, तो ओनली रिमेनिंग नंबर्स आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5। so we have to remove odd multiples of 5। so those will be 5, 15, 25 till 95। अगेन 5 को कॉमन ले लो, तो 1 + 3 + 5 till 19। तो सम क्या आ जाएगा? 5 into these are 10 consecutive odd numbers, so 5 into 10 square which will be 500। so 2500 minus 500, answer will be 2000 straight away। okay, ठीक है, आंसर विल बी 2000। क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज रिटन इन द फॉलोइंग मैनर, और सीक्वेंस क्या है हमारा? 2 फॉलोड बाय 8, देन 2 2s, देन 2 8s, देन 3 2s, देन 3 8s। सो नेक्स्ट क्या आएगा सीरीज में? 2 8 2 2 8 8 2 2 2 8 8 8, फिर आएगा 2 2 2 2 8 8 8 8। तो डेफिनेटली हमारा सीक्वेंस समझ पा रहे होगे। ठीक है, पहले आया 2 देन 8, वंस देन आएगा 2 times 2, 2 times 8, then 3 times 2, 3 times 8। so are you able to observe the cyclicity or the way the series is approaching, the sequence is approaching? क्या ये क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t5040 प्लस t5042 प्लस t5044 प्लस t5046। तो टर्म नंबर 5040, टर्म नंबर 5042, टर्म नंबर 5046 एंड टर्म नंबर 5044 का सम क्या होगा? where tn is the nth term of the given sequence। तो t1 है 2, t2 है 8, t3 है 2, t4 है 2, t5 है 8 और t6 है 8। ठीक है, तो पहला साइकिल हमारा बन रहा है 2 टर्म्स का,
2 and 8. नेक्स्ट साइकिल इज ऑफ 4 टर्म्स, देन नेक्स्ट साइकिल होगा 6 टर्म्स का, फिर अगला साइकिल होगा 8 टर्म्स का, फिर नेक्स्ट साइकिल होगा 10 टर्म्स का, फिर 12 टर्म्स का, फिर 14 टर्म्स का, फिर 16 टर्म्स का, एंड सो ऑन. तो समहाउ हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि 5040 के आसपास हमारा कौन सा साइकिल बनने वाला है. ठीक है, कौन सा साइकिल बनने वाला है, तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा. ठीक है, ओके. क्या ये समझ में आता है? क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, ओके. तो nth साइकिल में, फर्स्ट साइकिल की बात करें, साइकिल नंबर 1 में नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं? 2. व्हेन साइकिल नंबर 2 एंड्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 2 + 4. साइकिल नंबर 2 में टर्म्स तो 4 है. ठीक है, यानी डबल दैट ऑफ नंबर ऑफ साइकिल. ठीक है, nth साइकिल होगी तो साइकिल नंबर 2 में टर्म्स तो 4 है, बट साइकिल नंबर 2 तक के टर्म्स कितने हो जाएंगे? 2 + 4 6. ठीक है, साइकिल नंबर 3 तक के टर्म्स कितने हो जाएंगे? 2 + 4 + 6 दैट इज 12. तो साइकिल नंबर n तक के टर्म्स कितने हो जाएंगे? ठीक है, साइकिल नंबर n के टर्म्स देखो, 1 के टर्म्स हैं 2 टर्म्स आ रहे हैं साइकिल नंबर 1 में, साइकिल नंबर 2 में आ रहे हैं 4 टर्म्स, साइकिल नंबर 3 में आ रहे हैं 6 टर्म्स, तो साइकिल नंबर n में आएंगे 2n टर्म्स. बट टर्म्स टिल साइकिल n कितने होंगे? 2 + 4 + 6 टिल 2n. 2 को कॉमन ले लोगे तो 2 से कॉमन लेते ही 1 + 2 टिल n, तो 1 से लेके n तक मल्टीप्लाइड बाई 2. तो नंबर ऑफ टर्म्स टिल साइकिल n, नंबर ऑफ टर्म्स टिल साइकिल n, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू सम ऑफ 1 to n. 1 to n का सम होता है n into n + 1 by 2, और मल्टीप्लाई भी 2 से कर रहे हो तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे हमारे n into n + 1. नंबर ऑफ टर्म्स टिल साइकिल n विल बी n into n + 1. और ये हमें क्यों चाहिए? बिकॉज हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये 5040 के आसपास वैल्यू क्या आएगा n का. ठीक है, सो n into n + 1, दिस शुड बी लेस देन 5040. हिट एंड ट्रायल से वैल्यू आइडेंटिफाई करो n की. n को हम 50 रखेंगे तो कितना आएगा? 15 into 51 2500 के आसपास आएगा. n को 70 रखेंगे तो 70 into 71, दिस विल बी 4970. तो फॉर n इक्वल टू 70 दिस वैल्यू इज 4970, और फॉर n इज इक्वल टू 71 वैल्यू आ जाएगा 71 into 72. या फिर डायरेक्टली क्या करोगे? ठीक है, या फिर डायरेक्टली क्या कर सकते हो इसमें? ठीक है, 70 तक हमारे टर्म्स आ गए 4970, और nth साइकिल के बाद में, nth साइकिल में कितनी बार 2 आएगा? n टाइम्स आएगा. nth साइकिल में कितनी बार 8 आएगा? n टाइम्स 8 आएगा. तो 70th साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई 4970 टर्म्स में. तो 71st साइकिल में, साइकिल नंबर 71 में देयर विल बी 71 2s देन फॉलोड बाय 71 8s. ठीक है, तो 4970 तक के टर्म्स हमने काउंट कर लिया है. 4971 से स्टार्ट होकर टोटल कितने 2s होंगे? 71. 4970 + 71 दैट विल बी 5041. तो फ्रॉम 4971 टर्म 4971 to term 5041 we will be having 2s, and then from term 5042 to 41 plus 71 कितना आ जाएगा? that will be 51 12. these terms will be 71 8s. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? all these terms will be 8s. ठीक है, तो 5040 टर्म क्या होगा? टर्म नंबर 5040 that will be a 2 lie in this series, और टर्म नंबर 5042 that will be 8, और फिर 5044 भी 8 होगा, 5046 भी 8 होगा. सो टोटल सम विल बी 2 + 8 + 8 + 8, टोटल सम आ जाएगा हमारा 26, ऑप्शन सी. ओके, टोटल सम आ जाएगा हमारा 26. क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, फिर देखना उसको सॉल्व कैसे करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स तक कैसे पहुंचोगे, एक साइकिल में कितने टर्म्स आएंगे. nth साइकिल में हमेशा जब भी कभी ऐसा सीक्वेंस देखो तो जनरलाइज करते समय इंपॉर्टेंट है कि nth साइकिल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, nth साइकिल तक टर्म्स कितने जा चुके होंगे. दोनों पार्ट हमने समझे. फर्स्ट पार्ट दैट nth साइकिल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे विच विल बी 2n, और फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितने जाएंगे, तो उसके लिए क्या किया हमने? 2 + 4 + 6 2n तक का सीक्वेंस लिखा. 2 को कॉमन लिया तो 2 into 1 से n तक का सम होगा n into n + 1 by 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स स्टिल nth साइकिल विल बी n into n + 1. ओके, क्लियर है? अब इसी पे एक सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं.
नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5000 टर्म्स ऑफ द सीरीज। नाउ क्वेश्चन को देखकर देखो, बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। क्वेश्चन को अगर पैटर्न को समझ गए हो, देखो सिंपल सी बात समझते हैं। पहले फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालते हैं। 2 8 2 2 8 8। तो देखो फर्स्ट 2 टर्म्स का सम कितना आ रहा है? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज 10, 2 + 8 10, और एक साइकिल कंप्लीट हो गया उसमें, ठीक है। फर्स्ट 6 टर्म्स का सम निकालें तो दैट विल बी 2 + 8 + 2 + 2 + 8 + 8, बिकॉज सेकंड साइकिल भी कंप्लीट हो गया। तो दिस विल बी 10 + 20 30 आ रहा है, बिकॉज इन वन साइकिल नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितने भी हो, बट ऑलवेज नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इवन। नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इवन, because half the terms will be 2 and half will be 8। तो किसी भी साइकिल में 2 टर्म्स तुमने ले लिया, सारे टर्म्स अगर 2n टर्म्स हैं, इफ नंबर ऑफ टर्म्स है 2n, एंड साइकिल में 2n टर्म्स होंगे, तो आउट ऑफ 2n टर्म्स n विल बी 2 एंड n विल बी 8। तो टोटल सम क्या आ जाएगा? 2n + 8n यानी 10n। 2n विल बी टर्म्स एंड सम विल बी 8n, सम विल बी 10n। Isn't it so? तो फर्स्ट साइकिल में सम कितना आएगा हमारा? 10, सेकेंड साइकिल में 10n यानी 20, थर्ड साइकिल में 10n यानी 30, 20 30। या फिर जनरलाइज करें तो अगर जहां पे हमारा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहां पे देखा 4970 तक हमारी 70 साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। तो 70 साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं, टिल 70 साइकिल्स नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे? 4970 टर्म्स है। So out of these 4970 terms, half the terms will be 2, half will be 8। तो टोटल हमारे 4970 by 2, 2485 2s होंगे और 2485 8s होंगे। तो सम कितना आ जाएगा हमारा? सम आ जाएगा 2485 into 2 + 8। तो 2485 into 10, 24850, 24,850 will be sum till 4970। तो sum of 4970 terms will be 24850। बट हमें 5000 टर्म्स का सम चाहिए, तो 30 और टर्म्स चाहिए इसके बाद में, 4970 + 30। बट नेक्स्ट 30 टर्म्स क्या होंगे? सारे के सारे 2 होंगे। नेक्स्ट 30 टर्म्स सारे के सारे 2 होंगे। Isn't it so? तो बस इसके बाद में क्या कहानी बची? 24850 + 30 into 2, दिस विल बी 24910। सम आ जाएगा 24910। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ओके, क्या क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर? और अगर ये समझ में आता है तो फिर एक रैंडम क्वेश्चन देता हूं तुम्हें इसी पे, कि टर्म नंबर 500 प्लस टर्म नंबर 1000 प्लस टर्म नंबर 1500, what will be sum of these terms? Okay, what will be sum of these terms? Term number 500 plus term number 1000 plus term number 1500। take your time, ठीक है। कमेंट में आंसर मेंशन करना कि क्या आंसर आएगा। ओके, ऑप्शंस आर 6, 12, 18 and 24, yeah, none of these are 5 options। sum of term number 500 plus term number 1000 plus term number 1500। okay, and second question, sum of first 1000 terms of the series। so these are 2 questions। okay, mention your answers in comments for these questions। और जिन क्वेश्चन से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो, डिफिकल्ट फील हो, प्रॉब्लमेटिक फील हो, उन क्वेश्चंस पे टाइम जरूर देना है। उनको जरूर अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी तो सीखोगे, ठीक है। तो जब भी जरा सा दिक्कत हो रहा है तो उन चीज़ों पे अपना दिमाग और लगाना है और कोशिश करना है, थोड़ा सा अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है, तभी चीज़ें सीख पाओगे। और तभी जितना ज़्यादा चीज़ें सीखोगे उतना ही कंफर्टेबल फील करोगे फिर एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 digits of the number 29138576 are omitted so that the result is as large as possible। तो largest omitted digit क्या होगा? 4 digits of the number
29138576 आर omitted so that the result is as large as possible. तो largest omitted digit क्या होगा? Our purpose is to maximize the result. Result should be as large as possible. नंबर है हमारा 29138576. हमें नंबर को मैक्सिमाइज करना है, तो नंबर कब मैक्सिमाइज होगा? जबकि लेफ्ट मोस्ट डिजिट जितना बड़ा हो, जितना मैक्सिमम हो, इजंट इट सो? और राइट मोस्ट डिजिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट मोस्ट डिजिट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है, बिकॉज दैट इज मेकिंग अ नंबर लार्जेस्ट. सो ऑमिट करना जब नंबर्स को स्टार्ट करोगे, किस साइड से स्टार्ट करोगे? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से देखें, लार्जेस्ट नंबर क्या होना चाहिए? 9 दिख रहा है हमको, तो 9 शुड बी एट द लेफ्ट मोस्ट साइड, क्योंकि जब भी तुम 4 डिजिट्स को ऑमिट करने वाले हो तो नंबर ऑफ डिजिट्स रिमेनिंग विल बी सेम, वो तो सेम ही रहेगा. इजंट इट सो? टोटल डिजिट्स है 8, तो 4 डिजिट नंबर बचेगा हमारा. फोर डिजिट नंबर बचेगा. 2 को तो उड़ा ही दो, फिर 9 है उसके बाद में, 9 को रहना है बिकॉज दैट इज द लार्जेस्ट डिजिट. फिर 8 दिख रहा है हमको, नेक्स्ट लार्जेस्ट, ठीक है, तो 8 से पहले वाले 1 और 3 को भी उड़ा दो, नेक्स्ट विल बी 8. अब अगर लार्जेस्ट बनाना है तो 7 एंड 6 आर देयर, 5 को उड़ा दो, तो नंबर हो जाएगा हमारा 9876. दिस विल बी द नंबर, लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल. और लार्जेस्ट डिजिट दैट वी हैव omitted is 5. That digit is 5, तो आंसर विल बी ऑप्शन E 5. ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ABCD is a rectangle with AD is equal to 10. P is a point on BC such that angle APD is 90 degrees. If DP is equal to 8, then length of BP क्या होगा? ABCD एक रेक्टेंगल है और AD की लेंथ इक्वल टू 10 है. P is a point on BC such that angle APD is equal to 90 degree. If DP is equal to 8, what will be the length of BP? So ABCD, AD is equal to 10. This is 10. P is a point on BC such that angle APD is 90. थोड़ा सा डायग्राम को बेटर कर लेते हैं बिकॉज अभी APD 90 फील नहीं आ रही. फिर से बनाते हैं एक बार. ABCD, AD is equal to 10 and P is a point such that angle APD is 90. So angle APD is 90 degrees and DP is equal to 8. Now one side is 10, one side is 8. अब इतना देखते ही तुम्हें चमकना चाहिए पाइथागोरस ट्रिपलेट, दैट इज 3 4 5 वाला ट्रिपलेट या 6 8 10. बिकॉज वन साइड इज 8, वन साइड इज 10, हाइपोटेन्यूज 10 आ रहा है हमारा, एक साइड 8 आ रहा है, तो थर्ड साइड विल बी 6. AP इक्वल टू 6 आएगा. ठीक है, AP इक्वल टू 6 आएगा. क्वेश्चन पूछा है लेंथ ऑफ BP क्या होगा? What will be the length of BP? So let us assume length of BP is equal to x. This is equal to x. Okay, and if this is x, तो AB क्या आ जाएगा? AB को हम मान लेते हैं लेंथ A मान लेते हैं. So if this is A, CD will also be equal to A because rectangle है. और टोटल AD 10 है, तो BC भी तो 10 होगा, तो CP will be 10 minus x. Now we have two right angle triangles. दोनों पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा. सो इन APB ट्रायंगल APB, a square plus x square is equal to 36, 6 square which is 36. In triangle CPD triangle, a square plus 10 minus x whole square is equal to 8 square which is 64. So a square plus 10 square यानी 100 plus x square minus 20x is equal to 64. और a square plus square equal to 36 पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन से. दिस विल बी 36, a square plus square को 36 पुट कर दे, 36 plus 100 minus 20x is equal to 64. तो यहाँ से 20x आ जाएगा इक्वल टू 136 minus 64, that will be 72. So x will be 72 by 20 which will be 3.6. X will be equal to 3.6. Option D will be the answer. Okay. Option D will be the answer in this case. क्या है? क्लियर है?
ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी सोच सकते थे, this is 10, this is 8, this is 6, and these angles are also 90. Okay, now let us say this angle is theta. So if this angle is theta, this will be 90 minus theta. Hence this angle ADC भी तो right angle है, so this angle will be 90 minus theta, तभी तो सम आएगा 90. Similarly, this is 90 minus theta, this is 90, so this will be theta. है कि नहीं? ठीक है, या फिर यहाँ पे ये this is 90 minus theta, तो this will be theta. And if this is theta, this will be 90 minus theta. And if this is 90 minus theta, this will be theta. तो हमारे तीनों ट्रायंगल सिमिलर आ जाएंगे, all three triangles will be similar. ठीक है, तो थीटा के सामने देख लो, हमें क्या चाहिए, वी नीड लेंथ ऑफ बीपी. ठीक है, लेंथ ऑफ बीपी चाहिए हमको. तो 90 माइनस थीटा के सामने देखो, फॉर 90 माइनस थीटा साइन थीटा क्या होगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा विल बी बीपी अपॉन एपी, बिकॉज एपी तो नोन है हमें, एपी 6, तो दिस इज बीपी बाई 6 इन दिस छोटू वाला ट्रायंगल ए बीपी में. सिमिलरली ट्रायंगल एपीडी में देखो, क्योंकि एपीडी में हमें सारे के सारे साइड्स नोन है, ट्रायंगल एपीडी में साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर 6 अपॉन बेस विच इज 10, 6 बाई 10, एपी अपॉन एडी विच विल बी 6 बाई 10. तो दोनों में कंपेयर कर लो, 6 बाई 10, तो बीपी बाई 6 इज इक्वल टू 6 बाई 10, सो बीपी इज इक्वल टू 36 बाई 10, यानी कि बीपी इज इक्वल टू 3.6. और तुमको समझाना है इसलिए इतना लिखना है, अदरवाइज स्ट्रेट अवे तुम एग्जाम में देखोगे दिस इज 6 अपॉन 10. ठीक है, रेशियो तो सेम ही रहेगा ना दोनों ट्रायंगल्स में, 6 बाई 10, यहां पे वैल्यू है बीपी अपॉन 6, तो बस सीधे सीधे तुम यही लाइन लिखोगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. क्या है, क्लियर है? ओके, ठीक है. अदरवाइज यही सेम चीज सिमिलरिटी से भी देख सकते थे कि ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर है, ट्रायंगल ए पी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी डी, यानी थीटा 90 माइनस थीटा, तो दैट विल बी पी बी ए, सिमिलर टू ट्रायंगल पी बी ए. हमें चाहिए बीपी, तो बीपी अपॉन एपी, दिस विल बी इक्वल टू बीपी अपॉन एपी, दिस विल बी इक्वल टू एपी अपॉन एडी. सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ क्रिकेट मैच टीम ए स्कोर्ड 232 runs without losing a wicket. The score consisted of wides and runs scored by two opening batsmen Ram and Shyam. तो स्कोर में क्या करा, wides are there, wides are there, and scored runs by two batsmen. ठीक है, wides and scored runs by two batsmen. टोटल स्कोर है हमारा 232. There are the runs scored by the two batsmen are 26 times the number of wides. So if number of wides is W, so runs scored by the two batsmen is 26W, and 8 more buys than wides. तो wides से 8 ज्यादा है, यानी wides plus 8 are buys. टोटल स्कोर मिल गया यहाँ से. So 26W plus W plus 8, that is 232. तो 28W is equal to 224. W क्या आ जाएगा, 8 टाइम्स आएगा, तो W यानी वाइड का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 8, नंबर ऑफ वाइड्स विल बी इक्वल टू 8. क्वेश्चन आस्किंग रेशियो ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय राम एंड श्याम इज 6:7. तो रन्स स्कोर्ड बाय राम क्या होगा, टोटल रन्स कितने आ रहे हैं 26 इंटू 8, और रन्स स्कोर्ड बाय राम एंड श्याम का रेशियो है 6:7. टोटल कितना आ जाएगा, 6 + 7 13 यूनिट्स, 13 यूनिट्स इज इक्वल टू 26 इंटू 8. सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 2 26, तो 2 इंटू 8 16 आ रहा है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 16. So runs scored by Shyam will be 6 into 16. That will be 96 runs. Answer will be option B. And runs scored by Shyam will be 6 7 to 16. That is 112 runs. Okay. Clear?
नेक्स्ट क्वेश्चन, a dishonest milkman sells milk to 3 customers A, B and C. He replaces 10% of pure milk with water before selling to A. After this, he replaces 20% of the mixture with water before selling to B, and furthermore 11.1% of the mixture is replaced before selling to C. If the milkman professes to sell the milk at its cost price of rupees 80 per liter and he sells 1 liter milk to C, then find his profit on this sale. If he sells 1 liter milk to C, then find his profit on this sale. Okay. He is saying that he is selling at the cost price, but actual में क्या कर रहा है, पानी मिला रहा है, लगातार मिलाता ही जा रहा है पानी. So cost price of milk is rupees 80 per liter. He started with the pure milk, but उसने pure milk sell किसी को नहीं किया. पहले बंदे को A को भी जब sell किया, he replaced 10% of pure milk with water. ठीक है, replaced 10% pure milk with water. Then when he sold B, he replaced 20% of the mixture with water, and then when he sold C, before that he replaced 11.1% of the mixture with water. So what will be his profit if he is selling exactly 1 liter milk to C? ठीक है, ऐसा चीज समझो, 1 लीटर मिक्सचर सेल किया है. ठीक है, मिल्क थोड़ी 1 लीटर होगा, मिल्क तो कम हो गया, लगातार कम होता जा रहा है. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या बचेगा मिक्सचर का? If mixture was pure milk, तो cost price होता है 80 rupees का. But at the first instance, he replaced 10% of the mixture, 10% of milk with water. तो 10% को mix किया है, 10% replace किया है, यानी 9/10 हो गया होगा milk. Because replacement क्या है, mix नहीं किया additionally 10% को replace किया है. जब replace करोगे तो total quantity same रहा, बस उसने 10% milk निकाल दिया और 10% water fill up कर दिया. तो that is why 9/10 बचा. milk कितना बचेगा 9/10, because 1/10 को replace कर दिया. ठीक है, अब सेकंड टाइम ही रिप्लेस 20% यानी 4/5, सॉरी 1/5 को रिप्लेस किया है, और अगर रिप्लेस किया तो बचा कितना, मिल्क बचा होगा जितना इनिशियल में रहा होगा. ठीक है, यानी कि 4/5 बचा होगा, तो इंटू 4/5. थर्ड टाइम ही रिप्लेस्ड 11.1% विच इज 1/9. तो अगर 1/9 को रिप्लेस किया है, बचा होगा 8/9 मिल्क, तो इंटू 8/9. इनिशियली प्योर मिल्क था, तो अब इतना क्वांटिटी हमारा मिल्क बचा होगा, और क्योंकि मिल्क का कॉस्ट प्राइस था 80 रुपीज पर लीटर, तो जितना मिल्क बचा है उतना ही हमारा एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस पर लीटर बचेगा. ठीक है, बेसिकली ये समझो कितना मिल्क बचा हमारा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो 32/50. तो 32/50 इज मिल्क इन टोटल. तो अगर टोटल हमारा 50 ml लोगे, 50 ml में मिल्क इज 32 यूनिट्स, और जितना मिल्क होगा उतना ही तो कॉस्ट है, बिकॉज वाटर तो फ्री है, अनलेस अदरवाइज मेंशन. अगर किसी क्वेश्चन में वाटर कॉस्ट मेंशन है तो बात अलग हो जाती है, बट अदरवाइज वाटर इज फ्री. ठीक है, तो 32/50 इज मिल्क बाई टोटल. ठीक है, और मिल्क का ही कॉस्ट है, वाटर तो फ्री है, तो कितना कॉस्ट बचेगा, कॉस्ट प्राइस पर लीटर विल बी 80 इंटू 32/50, बिकॉज 1 लीटर में 32/50 ही मिल्क है. 0 से गया 0, 8 into 32 is 256/5, which will be 51.20 rupees per liter. So now the cost price of the mixture is 51.20 rupees per liter, but he is selling the mixture at the cost price of milk, which is rupees 80 per liter. So profit per liter will be equal to 80 minus 51.20, so that will be 28.80 rupees per liter. Answer will be 28.80 rupees per liter, option D. Is that clear? ठीक है, ओके. Now just in case we assume कि he mixed बिस्लेरी वाटर, ठीक है, या मिनरल वाटर मिक्स किया उसने. मिनरल वाटर कॉस्टिंग रुपीज 20 पर लीटर. ठीक है, एक बॉटल खरीद के महंगी सी उसने उससे मिक्स किया, एंड मिल्क वॉज कॉस्टिंग रुपीज 80 पर लीटर. तब प्रॉफिट क्या होगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे मिक्सचर का लास्ट में देख लेंगे कि 32/50 है मिल्क टोटल में. ठीक है, टोटल में 32/50 है मिल्क, मिल्क इज 32, टोटल इज 30, अब टोटल इज 50, यानी कि 16/25. तो 16 इज मिल्क एंड वाटर इज 9. 16 है मिल्क, वाटर है 9. ठीक है, 16:9 के रेशियो में, 9 वाटर है, 16 है मिल्क. तो एवरेज कॉस्ट क्या आ जाएगा हमारा, एवरेज कॉस्ट के लिए कैसे करोगे, देखो मिल्क और वाटर में डिफरेंस क्या है, मिल्क हमारा 60 रुपीज कॉस्टलियर है,
ठीक है, तो 20 प्लस, या तो 20 इंटू 9 प्लस 80 इंटू 16 कर दो, या फिर मिल्क हमारा 20 से 60 ज़्यादा है, 20 रुपीज़ मिनरल वाटर का कॉस्ट है और 16 रुपीज़ हम मिल्क मिक्स कर रहे हैं, तो 20 प्लस 16 इंटू 60 यानी 960/25। ठीक है, सो हमारा कॉस्ट आ जाएगा 20 प्लस 960/25, so this will be 192/5 है 38.4, this will be 58.40 rupees per liter. This will be our cost price effectively, क्योंकि हमने वाटर भी मिक्स किया है, उसका ही पैसा चार्ज किया है, और 80 रुपीज़ पर लीटर हमारा कॉस्ट प्राइस था फॉर मिल्क। तो प्रॉफिट इन दिस केस विल बी, प्रॉफिट पर लीटर इन दिस केस विल बी 21.40 रुपीज़ पर लीटर। ये एडिशनल डायमेंशन आया था इस केस में, क्या है क्लियर है? 21.60 आ जाएगा, 58.40 80 में सब्ट्रैक्ट करोगे 21.60 विल बी द आंसर। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, और अगर इंस्टेंट क्वेश्चन पूछता प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, इफ वाटर इज फ्री तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो हमें पता है 32 मिल्क है और मिल्क का ही कॉस्ट है, टोटल 50 का अमाउंट ले रहा है, बट कॉस्ट कितना है 32, कॉस्ट इज 32 और टोटल चार्ज कितना कर रहा है 50, तो 50 में से 32 कॉस्ट है, बाकी प्रॉफिट है, यानी कि आउट ऑफ 50 लेट अस से ही इज चार्जिंग 50 रुपीज, तो आउट ऑफ 50 रुपीज हिज कॉस्ट इज 32, 50 इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, रेशियो में हम समझ रहे हैं, रेशियो में डील कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे समझो कि 32 इज मिल्क, एक सेकंड फ्रेश पेज अगर आगे हो तो वहां पे देख लेते हैं। हाँ, तो एज सच आउट ऑफ टोटल, इफ टोटल इज 50 ml, तो मिल्क इज 32 ml। ठीक है, सो उसका कॉस्ट क्या होगा, मिल्क का ही कॉस्ट होगा, बाकी जो बचा हुआ 18 ml है वाटर, दैट इज प्रॉफिट बेसिकली। ठीक है, और ये प्रॉफिट किस पे हो रहा है, कॉस्ट पे हो रहा है, कॉस्ट तो हमारा 32 ml ही है, तो 32 ml पे 18 ml का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 32 रुपीज लेटेस्ट से 100 रुपीज हमारा कॉस्ट होता है, या 32 रुपीज उसका कॉस्ट है फॉर मिल्क, तो 18 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज इफ मिल्क इज 1 रुपी पर ml, तो 32 रुपीज का मिल्क कॉस्ट किया, क्योंकि इतना ही मिल्क है टोटल 50 ml में, और उसने चार्ज कितना किया होगा, 50 रुपीज चार्ज किया होगा, बिकॉज चार्ज अगर कॉस्ट प्राइस पे कर रहा है और सेल कर रहा है 50 ml, जिसमें से कि 18 ml उसने मिलाया है क्या, वाटर, तो वाटर के लिए भी चार्ज कर रहा है, तो वाटर के लिए जो उसको 18 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गया है, यही तो प्रॉफिट है उसका, बिकॉज एक्चुअल कॉस्ट तो यही है 32 रुपीज, 50 रुपीज थोड़ी है जो कि वो क्लेम कर रहा है, एक्चुअल कॉस्ट तो 32 ही है, 32 पे उसको प्रॉफिट हुआ है 18 का, तो प्रॉफिट रेशियो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ गया 18/32, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा हमारा 9/16, विच विल बी 8/16 प्लस 1/16, 8/16 यानी 50%, तो 56.25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, स्टेट अगर हम देख रहे थे कि टोटल उसका 32 मिल्क है 50 में से, तो 18 विल बी प्रॉफिट आउट ऑफ 32, सो 9/16 यानी कि दैट विल 56.25% स्ट्रेट अवे। क्या क्लियर है? तो जो भी डायमेंशन ऐसे क्वेश्चन का हो सकता है हमने डिस्कस कर लिया, क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ओके, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आई बिलीव जो भी डिस्कस किया, जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया समझ में आएंगे, एंड इफ एंड आउट एनी क्वेश्चन देन मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल। ठीक है, डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी डाउट्स। ठीक है, कोई भी कितना भी सिली डाउट क्यों ना हो, पर अगर तुमको डाउट हुआ है तो और भी कई लोगों को हुआ होगा, तो डेफिनेटली आस्क दैट डाउट। ओके, and for any queries or concerns or questions you can always message me on telegram at ADITYAKT, and if you have not already subscribed to the channel then subscribe to the channel as well। सारे के सारे PYQs के सेशंस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो उनको एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लेना अगर अब तक तुमने नहीं देखे हैं तो। ठीक है, एंड इफ यू एनी अदर कंसर्न्स यू कैन ऑलवेज मैसेज। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।